Hello students, it's me your science teacher Sangmo ma'am. Okay children, in today's class we will do the last part of this lesson, that is lesson 4, parts of a plant, and the topic is germination. Alright, and today's topic is what? Germination. So first we will do the reading, then we will discuss about the things that is given on the book. Alright, so here germination, the process by which a seed gives rise to a new plant is called germination. The seeds are first buried in the soil. When they get sufficient air and water, they grow into new plants. So here, first, what is there? The definition of germination is given here. All right, children. पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? Germination का definition. Germination का मतलब क्या है? All right. तो what is germination? The process by which a seed gives rise to a new plant is called germination. Please underline this whole line. This is the definition of germination. Okay. So tell me, what is germination? The process, or it is the beginning of growth of a seed. Alright, germination is the beginning of the growth of a seed, or the seed requires what? Warmth. Okay, so it is what? The process of the beginning of the growth of a seed. Alright, it is the beginning of growth of a seed. Alright, and which turns into a new plant is called germination. तो germination क्या है? जब एक छोटा बीज जो बीज होता है, राइट? तो बीज का मतलब सीड, राइट? तो वो जब वो सीड क्या होता है, एक नए प्लांट में कन्वर्ट होता है. जब वो छोटे प्लांट जब हम लोग एक प्लांट को, एक सीड मतलब बीज को लाइक मिट्टी में डालकर वो उससे जब एक नए प्लांट, ओके, एक नए से पौधे जब बनते हैं, उसी प्रोसेस को, ऐसे तरीके को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. ऑलराइट, एंड The seeds are first buried in the soil. तो ये germination process में पहले हम लोग क्या करेंगे? First, what do? We will what? We will bury the seed in the soil. Okay, seeds are first buried. Like the buried का मतलब दफनाना. Okay, so पहले ये seed को क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, right? तो वो seed जो बीज होता है फ्रूट्स के या तो किसी भी चीज़ के सीड्स, ऑलराइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किसी की भी चीज़ के सीड को हम लोग क्या करते हैं? सॉइल के अंदर दफनाते हैं, राइट? व्हेन दे गेट सफिशिएंट एयर, जब दफनाते हैं तो व्हाट डू? वी पोर इनफ वाटर, राइट? The seeds required warmth and moisture to germinate, right? So first, what do? The seeds, we bury the seeds in the soil. पहले हम लोग सीड को और बीज को हम लोग क्या करते हैं? बीज को उसको सॉइल के अंदर क्या करते हैं? दफनाते हैं, बड़ी करते हैं. तो उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से कवर करके क्या करते हैं? थोड़ा पानी डालते हैं, राइट? सो व्हेन दे गेट सफिशिएंट, अंडरलाइन द वर्ड सफिशिएंट. सफिशिएंट का मतलब क्या है चिल्ड्रन? सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में. ओके, इनफ. तो जब उसको इनफ, पर्याप्त मात्रा में एयर, हवा और पानी मिलते हैं वो बीज को, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट. तभी वो क्या करते हैं? नए पौधे बनते हैं. तभी वो नए पौधे बनते हैं. क्या बनते हैं? सीड, बीज. ओके, तो इसी तरह के प्रोसेस, ऐसे तरीके को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस. दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड व्हाट? जर्मिनेशन प्रोसेस. एंड द सीड रिक्वायर्ड व्हाट? स्पेशली वार्मथ एंड मॉइस्चर टू जर्मिनेट. ओके, जर्मिनेट करने के लिए सीड्स को क्या चाहिए? स्पेशली द मॉइस्चर एंड द वार्मथ. वार्मथ का मतलब है सनलाइट भी चाहिए, ओके, सनलाइट भी चाहिए और मॉइस्चर भी, ओके, वाटर भी चाहिए. ऑलराइट, देन first, what happens during germination process? First, the seed leaves absorbs moisture, which allows the food which allows the food to surge and becomes available to new plant. Okay, first the seed leaves absorb the moisture, which allows the foods to
which allows the foods to like absorb the this one, okay, in the leaf. Then it becomes available to, it becomes what, then it grows into a new plant. All right, so in order to germinate the seed, in order to germinate, what does it requires? It requires what? Warmth and moisture, especially air and water. Okay, even the sunlight and nutrients are also very important for germination. All right children, तो ऐसे प्रक्रिया जिसके द्वारा बीज उत्पन्न होते हैं, ऑलराइट, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. ऑलराइट चिल्ड्रेन, तो आप लोग को समझ में आया होगा जर्मिनेशन का मतलब क्या है. जिसके द्वारा, ओके, ऐसी प्रक्रिया जो जिसके द्वारा बीज उत्पन्न, ओके, बीज के द्वारा, बीज से एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं, ऑलराइट, निकलते हैं, पौधे बनते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं. और जर्मिनेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग पहले क्या करते हैं, सीड को, बीज को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दफनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं. तभी जब वो बीज को परिपूर्ण और पर्याप्त मात्रा, भरिपूर्ण मात्रा में पानी और हवा मिलते हैं, तभी वो क्या करते हैं, एक नए पौधे बनते हैं. तो इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस जर्मिनेशन, राइट. सो हियर लेट्स प्रोनाउंस टुगेदर. तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंस करने के लिए द फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर. ऑलराइट, तो आप लोग को इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना सीखना है. सो आई विल टीच यू हाउ टू प्रोनाउंस दिस. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज LEAF इज लीफ. LEAF लीफ. MIDRIB इज midrib. MIDRIB इज midrib. तो लीफ के जो बीच के जो लाइन है उसको midrib बोलते हैं. लीफ मीन्स पत्ते. CHLOROPHYLL chlorophyll. Okay, chlorophyll. This is called chlorophyll. Germination. Green color pigment present in the leaf is called chlorophyll, right? And GERMINATION is germination. GERMINATION is germination. So I told you what this germination means. The process by which it gives new birth to a new plant is called what? Germination. Okay. BLADE blade. BLADE blade. Okay, leaf blade क्या होता है? लीफ के ये बाहरी जो बड़ा वाला भाग होता है, that is called leaf blade, right? PETIOLE petiole. PETIOLE petiole. All right. STOMATA stomata. STOMATA stomata. Stomata are the tiny pores present in the leaves. Okay, so here let us revise this lesson from here. Alright children, तो let us revise. The plant is made up of the root system and the shoot system. तो हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि एक पौधे, एक प्लांट कितने भाग में डिवाइड होता है? 2 भाग में. दैट इज व्हाट? रूट सिस्टम एक है और दूसरा है शूट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन, द रूट होल्ड्स द प्लांट अंडर द ग्राउंड. तो रूट का मतलब क्या है? जो प्लांट के, पौधे के नीचे, जमीन के नीचे का भाग को हम लोग बोलते हैं रूट, राइट. तो वो रूट क्या करते हैं? प्लांट को अच्छी तरह से जमीन के नीचे होल्ड करने में मदद करते हैं. होल्ड का मतलब अच्छी तरह से पकड़ के रखता है प्लांट को, पौधे को. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. तभी ऊपरी भाग, जमीन के ऊपर का भाग, पौधे की जमीन के ऊपर का भाग को हम लोग बोलते हैं स्टेम. और वो स्टेम क्या करते हैं? पौधे को जमीन के ऊपरी भाग में खड़े होने में क्या करते हैं? मदद देते हैं. ऑलराइट, द रूट में बी टैप रूट और फाइब्रस रूट. ये रूट जो जड़ होता है प्लांट का, वो भी 2 प्रकार का होता है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज टैप रूट और एंड फाइब्रस रूट. ऑलराइट, एक टैप रूट है और एक फाइब्रस रूट है. दिस वन, the roots absorb water and minerals for the plants. These are transported by the stem to various parts of the plant. So the root का मतलब जो जड़, what is the work of the root? It absorbs the water and nutrients present in the soil. Okay, जो soil में, जो मिट्टी में पानी और जो minerals होता है, ओके, पोषक तत्व, जितना भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? कौन चूस लेते हैं? रूट का मतलब जड़. ओके, और वो चूस के क्या करते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्टेम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो उसको
रूट से एब्जॉर्ब होकर रूट में से चूस के रूट स्टेम के जरिए क्या करता है, वेरियस पार्ट्स प्लांट के पौधे के अन्य अन्य भाग में क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं. ऑलराइट, द लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. आई टोल्ड यू लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बिकॉज, और किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज द फूड इज प्रिपेयर्ड, द प्लांट्स प्रिपेयर द फूड इन द लीफ. राइट, तो पौधे क्या करते हैं, अपना खाना अपने से बनाते हैं, और वो अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं, लीफ में, पत्ते पर. और पत्ते में किसकी मदद से खाना बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. राइट, सनलाइट की मदद से, वाटर, एयर, सनलाइट. राइट, एंड क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में क्या होता है, खाना बनते हैं. तो वहाँ पर खाना बनने के कारण से लीफ को, पत्ते को हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. ओके, द लीफ इज अटैच टू द मेन प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ पेटियोल. तो लीफ, जो पत्ते मेन प्लांट का मतलब है एक मेन पौधे से पत्ते अटैच होते हैं. अटैच का मतलब जुड़ा हुआ होते हैं, किसकी मदद से, पेटियोल के मदद से. ऑलराइट, एंड द फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स. आप लोग को पता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट क्या होता है, पहले सीड होता है. सीड को हम लोग, बीज को क्या करता है, जमीन के अंदर देते हैं, उसमें से एक नए पौधे निकलते हैं, छोटा वाला पौधा, दैट इज नोन एज सीडलिंग. तो सीडलिंग के बाद वो पौधे बड़े होकर पेड़ बनता है. पेड़ में से क्या बनता है, फ्लावर्स निकलते हैं. फ्लावर्स में से फिर वो फ्लावर्स कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर से फिर से बीज निकलते हैं, सीड. तो फिर से वो सीड क्या होता है, ज़मीन के अंदर देते हैं, उससे फिर न्यू एक क्या होता है, नए प्लांट बनते हैं. तो ऐसे करके लाइफ साइकिल होता है. जो फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स, जो पेड़ से जितना भी फ्लावर होता है, वो फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट बन जाता है. ओके, फ्रूट का मतलब है फल. The fruits have seeds in them that grow into new plant. तो fruits के अंदर क्या होता, क्या मिलता है, seeds. seeds का मतलब क्या है, बीज. और वो बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया, we give them और we bury them in the soil. तो हम लोग उसको क्या करते हैं, soil के अंदर दफना देते हैं. and we pour some water. तो हम लोग उसमें ऊपर से पानी डाल देते हैं. and when the seed gets sufficient or enough air and water, जब पौधे हवा और जब वो बीज को हवा और पानी अच्छी तरह से मिलते हैं, तभी इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. तभी वो एक नए पौधे बनते हैं. एंड उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन, और उसको सीडलिंग. सीड जब छोटे प्लांट निकलते हैं तो वहाँ उसको बोलते हैं सीडलिंग्स भी. ऑलराइट, सो दिस इज इट. आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन. राइट, तो आप लोग को समझ में आया होगा चिल्ड्रेन. राइट, तो अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार फिर वीडियो देखिए, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन हिंदी ओनली. ऑलराइट, तो मैंने आप लोग को इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आई होप यू you are able to understand the things. Right, so this is it for today. Please do take care of yourself, children. Please do study well. All right, and learn the spellings. This one, all right, all the spellings, blade, petiole, stomata. So all the spellings you have to learn and keep in mind. All right, so take care, children. Okay, I'll meet you in my next class. I'll give you the solution of the exercises in next class. All right, so take care. Okay, study well. Thank you.